So writing reflex is something when always the trainer have a kind of a tendency to make everything correct कि ये सही है और उस इंटेंशन के कारण बहस मतलब उस इंटेंशन के कारण आप आर्ग्यूइंग करने लगो आर्ग्यू हो जाए आर्ग्यूमेंट हो जाए और या फिर उसमें थोड़ा सा उसके अगेंस्ट हो जाए तो मतलब थोड़ा सा मतलब आप उसको कन्वर्सेशन थोड़ा हाइप अप हो जाए तो ये एडवांटेज की जगह डिसएडवांटेज देता है ये प्रूवन हो चुका है Writing reflex. यस ओके Okay. It is important to note that while motivational interviewing may seem simple, it is not. As such, becoming adept at motivational interviewing takes training and practice. While this chapter provides a very brief introduction to motivational interviewing, personal trainers seeking more in-depth information are encouraged to consider enrolling in motivational interviewing training program or seeking out other professional education to build and refine the complex set of skills, including 2A resources. The professional guide to health and wellness coaching and coaching behavior change. समझ गए? अगर ज्यादा इच्छा है आप लोगों की तो आप ये वाले प्रोग्राम खरीद सकते हैं अगर आप ज्यादा इंटरव्यूशन में डीपली घुसना चाहते हो ये सिर्फ एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है डन जी सर applying what you know practice using open ended question why do you want to make this change this kind of questions they are like open ended questions how might you go about making this change what are 3 best reasons for you to do it how important is to you to make this change these are all open ended questions after receiving answer from each of these questions reflect back and summarize the client response then ask what do you think you you will do go through this process आप उसके बाद आप सब कुछ पूछने के बाद उसे रिफ्लेक्शन बैक करने के बाद आप उसे पूछते हो अब आपको क्या लगता है आप क्या करेंगे तो गो थ्रू दिस प्रोसेस विद 3 clients फ्रेंड्स फैमिली और अपने आसपास के माहौल में अपने कोवर्कर के साथ करें ताकि आप एक अपने पर्सनल ट्रेनर के उसको जान सके कि क्या करना है इजी एक छोटा सा उन्होंने आपको होमवर्क बताया ये प्रैक्टिस कर सकते हैं यस सो सर यस इसमें बोला था गो थ्रू दिस प्रोसेस विद 3 क्लाइंट ये कोच कह रहा है या फिर अरे ये बुक कह रही है ये बुक कह रही है आपको कोच बनने से पहले बुक 3-4 बंदों से मिल लेना हाँ ठीक है एक बुक कह रही है एक रीडर को ओके सर रिस्पॉन्डिंग टू डिफिकल्ट डिस्क्लोजर हाँ भाई आर्यन पढ़ो Personal trainer are sometimes unsure how to respond when clients share information that is very sad, such as a disclosure of a client's serious illness or the illness of death of someone close to the client. ये तो मुझे भी लगता है प्रॉब्लम लगती है मुझे. Often a short response is all that is required, such as I'm sorry that you must have been very hard, or I can only imagine how difficult that must have been for you and your family. The personal trainer should follow the client's leads as to whether he or she wants to say anything more on a topic or not. If the situation affects exercise program design in any way, the personal trainer can turn the conversation back to the practical detail. For example, now that your mother has moved in with you and your family, what is the best time for you to get a fitness center? If client reveals medical information that causes concern, they should be referred to their healthcare providers for medical clearance. If a medical condition places a client outside of the personal trainer's scope of practice and expertise, the client should be referred to someone with the necessary training and experience. चैप्टर 1 जी. यार समझ में आ गया सबको इजी था जी. हेल्थ कॉन्टिन्यूम याद है आपको चैप्टर 1 में यस सर उसी से रिलेटेड है समटाइम पर्सनल ट्रेनर हियर इंफॉर्मेशन हाँ नहीं कुछ नहीं था कुछ नहीं नथिंग
Sometimes personal trainer hear information that worries or even alarm them. For example, a personal trainer may suspect a client is suffering from depression and eating disorder or another serious health problem. In such cases, personal trainer should follow referral procedures that encourage the client to seek professional help. Personal trainer may also wish to share their concern while maintaining the confidentiality of the client. With the supervision of colleague, confirm their referral plan. Easy? जी सर। जी सर। समझ में आया सागर? जी सर। यस सर। एक बार एक्सप्लेन करेगा? सर एक सेकंड। सर वो ये कह रहे हैं कि जैसे क्लाइंट है वो किसी डिप्रेशन में है या ईटिंग हैबिट्स जो है उसके वो खराब है, ठीक है, या नहीं खा पाता है। ऑन अ सीरियस नोट, इन सच केस पर्सनल ट्रेनर शुड फॉलो द रेफरल प्रोसीजर, यानी कि जो उसको रेफरेंस बताया गया है प्रोसीजर, उसको फॉलो करना चाहिए, इंस्टेड कि वो अपना ईटिंग डिसऑर्डर जो हैबिट्स है उसको खराब करता जाए। और वो अपने जो कंसर्न है। सर am I audible? बोलता रहे। अच्छा। तो सर उसके अंदर जो कंसर्न बताया गया है, वाइल मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियल टू द क्लाइंट, जो क्लाइंट और कोच के बीच में जो कॉन्फ्रेंस कंसर्न है टुवर्ड्स देयर ईटिंग हैबिट या ईटिंग डिसऑर्डर और डिप्रेशन को लेके, उसको सुपरवाइजर्स जो एक सेकंड सर, विद द सुपरवाइजर और अ कलीग टू कंफर्म देयर रेफरल प्लान। एक काम करो, हाँ बोलो बोलो। सर ये लास्ट टाइम में समझ लीजिए, विद देयर सुपरवाइजर और कलीग टू कंफर्म देयर रेफरल प्लान। कि जो भी एक अच्छे सुपरविजन के साथ एक अच्छे अपने कलीग, मतलब आप उसका जो प्लान है उसको कॉन्फिडेंशियल रखें। सुपरवाइजर तो मतलब होता है ना सर, उससे जो सुपीरियर होगा। आपका जो सुपरवाइजर है, जो आपका जो डॉक्टर है, उसके सुपरवाइजर और आप और अ कलीग जो उसका आप उससे किसी भी आप उसको जो रेफरल प्लान आया है उसके साथ साथ चले, आप शेयर ना करें। ये चैप्टर 16 में आएगा, मैं समझाऊंगा। तो सर शेयर ओके किससे सर। नहीं करना, क्लाइंट से? आपको उसकी फैमिली से नहीं करना कुछ भी। ओके, आप उसको उसका पर्सनल आप लेना उसको कहिए, चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि आप हमारा ये ड्यूटी बनती है कि हम ये कह सकते हैं कि आप अपने आप कंफर्म कर लीजिए, आप पूछ लीजिए। पर चाहे ट्रेनर उसकी नहीं वाइफ बताएगा, मांग रही हो, हम उससे शेयर नहीं कर सकते। डिब्बा अगर कब उसको फॉलो करेगा? सर अगर हम अगर उसकी वाइफ मांग रही है, तो वो क्या, हम उसको उसको कहिए कि आप एक बार लिखित में दे दीजिए मुझे इन्फॉर्मेशन अपने पति के हाथों। सर वो ये था अगर कि हमारा जो क्लाइंट है, अगर हम किसी से शेयर करना चाहते हैं तो पहले हम क्लाइंट से ही इनको पूछेंगे, अगर वो अलाउ करते हैं तो ही लिखित इन्फॉर्मेशन हम आगे पास रिटर्न कर में सकते रिटर्न में अलाउ करें। हैं। हाँ जी, रिटर्न में अलाउ करें तभी हम किसी को बता सकते हैं, अदरवाइज नहीं बोल सकते। यस, और जिसका नाम लिखे सिर्फ उसको। जी सर। प्लानिंग स्टेज। The planning stage of the client personal trainer relationship should be viewed as give and take opportunity in terms of communication. While personal trainer move into a more active role during this stage, they must continue to listen to clients' responses to their ideas and suggestions, and also elect input from client. Client adherence often improves when the clients actively partner with the personal trainer in the process of exercise program design. The planning stage generally moves through the following steps: setting goal, generating or discussing alternates, formulating a plan, evaluating the exercise program. यहाँ तक क्लियर है? जी जी। सर। 4 पॉइंट्स। यहाँ तक क्लियर है? आर्यन समझाना मेरे को हल्का सा क्लियर है तो। सर प्लानिंग स्टेज के अंदर यह बताया है इसके अंदर कि जो गिव एंड टेक जो कम्युनिकेशन है हमारी ना, उसके थ्रू जो हमारे को उसका सारा कुछ वर्कआउट प्लान और सब चीजें जो प्लान करनी है उसके ऊपर है, और जो उसके 4 पॉइंट्स है उनको फॉलो Give and करना take है। is a kind of opportunity which is coming because of communication. जो वो And while कम्युनिकेशन performing the सही है। trainer, while personal trainer move into the more active role during the stage, into the stage, जब हम्म। तक इस स्टेज में आता है, जब more active की हम्म। तरफ बढ़ जाता है, planning, और they must continue the listen to the client response and their ideas. हमें उसको सुनना है, clients को सुनना है, उसके आइडिया सुनने हैं कि और वो क्या
किसी को एलिक्ट याद है? मैंने एलिक्ट बताया था। हाँ द इंफॉर्मेशन गैदर Yeah. करना। बढ़िया। किसी चीज So का just elect input from the client, उससे सारी इंफॉर्मेशन गैदर करके क्लाइंट के बारे में, और उसके बाद क्लाइंट अडेरेंस ऑफन improves। ये इसके कारण जो क्लाइंट का जो अडेरेंस है ये बढ़ जाता है, क्योंकि आप उसके साथ एक्टिवली उसके पर्सनल ट्रेनर उसके साथ प्रोसेस में, एक्सरसाइज प्रोग्राम डिजाइन में इन्वॉल्व होता है, Right. और उसी के जी हिसाब से सर। प्लानिंग होती है, स्टेज उसके हिसाब से हम कंफर्म कर, इस स्टेज में उसी के हिसाब से हम उसके साथ साथ मूव करते हैं। तो चार चीजें बताइए: सेटिंग गोल, generating discussion alternatives, formulating a plan, and evaluating a exercise program. सागर। सर नेक्स्ट पॉइंट पे सेटिंग गोल पे। सेटिंग गोल। Setting goals. Setting goal is an important process for initial and continued behavioral change. It is an integral part इंटीग्रल of पार्ट ऑफ, all exercise programs. The best thing about इंटीग्रल goal मतलब होता है setting is कोर that पार्ट, मतलब कि एक उसका अंदरूनी पार्ट, एक्सरसाइज पार्ट का एक बहुत इंटीग्रल इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेटिंग गोल एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इनिशियल और कंटिन्यूड बिहेवियर चेंज के लिए, बिहेवियर चेंज लगातार करने के लिए। इट इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्सरसाइज प्रोग्राम. The best thing the about the goal setting is that it is a relatively simple to employ, extremely effective when done properly. ये गोल सेटिंग बहुत ज्यादा रिलेटिवली बहुत सिंपल है, सिंपल हो जाती है और एक्सट्रीमली इफेक्टिव हो जाती है जब आप इसको ढंग से करते हैं। गोल सेटिंग से आगे बढ़े। sorry, goal setting must be used systematically and should be an active part of the program to maximize adherence. The following are the following are a key few key consideration to keep in mind during the goal setting process. सर कंटिन्यू करूं? हाँ, कंटिन्यू कर। Avoid setting too many goals. Keep the number of goals manageable and attainable so that the client is not overwhelmed with all that he or she needs to accomplish. यानी कि avoid मतलब setting too many कि goals. पहले सेटिंग टू मेनी गोल्स, मतलब कि पहले वाला समझ में आ गया था। गोल सेटिंग मस्ट बी सिस्टमेटिकली होनी चाहिए और एक्टिव पार्ट है जी। प्रोग्राम का, मैक्सिमाइज करता है एडहेरेंस को। द फॉलोइंग इसके कीज दे रखे हैं: अवॉइडिंग सेटिंग टू मेनी गोल, बहुत ज्यादा गोल बनाएंगे तो मैनेजेबल नहीं होंगे, अटेनेबल नहीं होंगे, तो उसके कारण आप ओवरवेलम हो जाओगे और उसको ऐसा लगा अरे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो अकम्प्लिश करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अवॉइड सेटिंग नेगेटिव गोल्स। नेगेटिव गोल कौन कौन से? इफ द क्लाइंट वांट टू सेट अ गोल ऑफ not missing any workout, the personal trainer should help the client to reframe this goal to positive way. I will attend every scheduled workout session. Setting negative goals puts the focus on the behavior that should be avoided, not the behavior to the achieved. It is important that client thinking about achievement, not avoidance. समझ में आया कि भैया कोई भी ऐसे कि मैं नेगेटिव एक भी गोल्स ना प्लान, बनाए एक जो क्लाइंट कि जैसा एक प्लान बनाया उसने कि मैं एक महीने के अंदर 6 पैक एब्स बना लूंगा, ठीक है, उसका वेट है 110 किलो। तो सपोज जब आप ये वाली बात, वो बंदा ये वाला कैप अपने आप को ये वाला गोल अचीव करने के लिए बात कर रहा है, तो दिस इज समथिंग विच इज नेगेटिव गोल, बिकॉज उसको कहीं ना कहीं उसको प्रेशराइज महसूस होगा और वो उसको डिमोटिवेट भी करेगा बाद में। तो उसको रीफ्रेम राइट करें कि आप इस एक महीने के अंदर आप कोई भी वर्कआउट सेशन मिस नहीं करेंगे, रैदर देन कि आप एब्स बनाएंगे, या फिर जो भी नेगेटिव गोल है कि आप वेट कम करेंगे, क्योंकि वेट कम कर कहीं ना कहीं लोगों का अगर नहीं होगा तो वो नेगेटिव महसूस करेंगे। बट आप ये गोल अगर उनको देते हैं और वो जब वो नेगेटिव महसूस करते हैं, उनका एडहेरेंस कम हो जाता है, उनका एक्सरसाइज के साथ जुड़े रहना कम हो जाता है। और ये गोल जब देते हैं कि उनको, कि आप उनका गोल रीफ्रेम करने में हेल्प करते हैं कि आप इस महीने कम से कम इन 24 सेशनों में कम से कम आप 18 सेशन आप आएंगे, तो इट इज अचीवेबल। और जब वो आएगा तो ऑब्वियस बात है उसको रिजल्ट भी मिलेगा, है ना। तो दिस गिव्स इट्स पॉजिटिविटी ऑल्सो, इसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, समझ में आया? जी राइट सर। और सर सेट इसको इस तरीके शॉर्ट, से भी कह सकते हैं ना, इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि अगर कोई ऐसा गोल बनाना है या जैसे एक एक महीने में उसको बॉडी बनवानी है विच इज एन अननेचुरल और अनरियलिस्टिक गोल, अगर तो मैंने भी तो यही अवॉइड बोला। सेटिंग नेगेटिव गोल्स भी हम कह सकते हैं ना। हाँ, कोई भी ऐसी चीज जो उसकी फिटनेस
कैपेबिलिटी से बहुत ज्यादा है, हम वो नहीं, सेट कोई कर भी रहे हैं ऐसी गोल, तो चीज जो शायद से वो फिटनेस ज्यादा है। कैपेबिलिटी से ज्यादा भी ना हो। फिटनेस के देखो, जैसे तुमने एक एग्जांपल पढ़ा, ऐसा नहीं है। बट अगर गलती से भी उसने एक गोल बनाया कि मैं सारे सेशन आऊंगा, और एक सपोज करो, अगर सारे सेशन में एक भी सेशन मिस नहीं एक भी सेशन मिस हो गया, तो ये नॉर्मल है ना, एक भी सेशन मिस होना, तो एक सेशन तो मिस हो ही सकता है। अगर एक भी सेशन मिस हुआ तो वो अपने आप को नेगेटिव अप्रोच कर पाएगा, अटेंडेंस प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए वो कह रहा है कि अटेनेबल गोल बनाए। ठीक है, ओके। ये गोल थोड़ा सा ठीक है, ये गोल अटेनेबल तो है, बट इट्स नॉट लाइक 100% श्योर। सम कहीं ना कहीं सर्कमस्टांसेस। थॉट आ सकता है नेगेटिव नहीं वाला। नहीं, थॉट वाली बात नहीं, सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं ना यार, उसके घर में कोई बीमार हो जाए, वो बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, भगवान न करे, तो छुट्टी तो लग सकती है ना, तो फिर वो गोल अचीवमेंट नहीं हो पाएगी। जी सर। है ना। तो बल्कि उसको ये बोलना ओके है कि सर। जितने भी आपका वर्कआउट सेशन जो होगा, शेड्यूल वर्कआउट सेशन होगा, उसको आप अटेंड जरूर करेंगे। ठीक है ना। ठीक है सर। सेट और शॉर्ट लॉन्ग टर्म गोल्स एज वेल प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस गोल्स। इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। क्लाइंट शुड बी अचीविंग शॉर्ट टर्म सक्सेस इन ईच वर्कआउट। उसको शॉर्ट ऐसे गोल देने हैं, लॉन्ग टर्म गोल नहीं देने। और सेट शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म गोल, पहले एक अपना शॉर्ट टर्म गोल अचीव करे, उसके थ्रू आप लॉन्ग टर्म गोल अचीव करें, रेदर देन सीधा लॉन्ग टर्म। और प्रोसेस गोल अचीव करें, देन परफॉर्मेंस गोल करें। परफॉर्मेंस मतलब कि भैया मुझे इस परफॉर्मेंस तक पहुंचना है, प्रोसेस मतलब कि भैया मुझे इस प्रोसेस में रहना है। तो प्रोसेस गोल्स आर लाइक शॉर्ट एंड अटेनेबल गोल्स। Include the client in the process. For the client to optimize success in attaining a desired outcome, to achieve to achieve one vision of what life will be like after a behavior change has been made. It is important that the client values inform the development of their goals. Thus, collaboration between the client and the personal trainer during the goal setting process will strongly influence the potential success of client achievement. समझ में आया। मुझे नहीं आ ठीक है। थोड़ा सा जो सर क्लाइंट इसका क्लाइंट मतलब, ऑप्टिमाइज सक्सेस इज अटेनिंग डिजायर्ड आउटकम। जो क्लाइंट का जो सक्सेस है उसको अटेन करना, ये एक डिजायर्ड आउटकम है। टू अचीव वन विजन ऑफ व्हाट लाइफ विल बी लाइक आफ्टर अ बिहेवियर चेंज। एक ऐसा विजन रखना जो व्हाट लाइफ विल बी लाइक आफ्टर, कि आपकी लाइफ कैसी रहेगी जब आपके अंदर चेंज आ जाएगा, ऐसा विजन देना उसको, ऐसा इमेजिन करवाना। इट इज इंपॉर्टेंट दैट क्लाइंट वैल्यूज इन्फॉर्म द डेवलपमेंट ऑफ देयर गोल्स। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम उस क्लाइंट की वैल्यूज को एक इन्फॉर्म करें कि उसकी डेवलपमेंट कैसे कैसे कहाँ कहाँ हो रही है। बस ये इस तरह का कोलैबोरेशन ये क्लाइंट और प्रोफेशनल ट्रेनर के बीच में रहता है, जो ये गोल सेटिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है और स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है पोटेंशियल ऑफ सक्सेस ऑफ क्लाइंट्स। समझ में आया। जी सर। जी सर। एक पढ़ना सागर। रिविज, हाँ, Revisit रिविज द the गोल goals ऑन on अ regular रेगुलर basis. basis. This is the most important thing that a personal trainer can do to maximize the effectiveness of the goal setting process. Goals needed regular adjusting and should be consistently used as a tool to help direct attention and efforts and to promote persistence. समझ में आया। ये The कह रहा है persistence कि को क्या मतलब? रीविजिट द गोल एंड रेगुलर लाइक बायस। मतलब कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, एक पर्सनल ट्रेनर मैक्सिमाइज करे अपने इफेक्टिवनेस, ताकि गोल का जो इफेक्टिवनेस है वो हमेशा बरकरार रहे। उसके लिए वो रोज एडजस्ट करे थोड़ा बहुत अपने जो उसके गोल बने हैं, उसको कंसेंट ऐसे ऐसे टूल्स ऐसे बनाए आपको जो हेल्प कर सके डायरेक्ट अटेंशन देने में एफर्ट को, और उसकी जो परसिस्टेंस है उसको प्रमोट कर सके। इजी। सर इसका मतलब ये है कि जो उसका गोल है, उस गोल की तरफ बार बार उस ध्यान दे के हमारे को हाँ ऐसे ऐसे प्लान्स करने चाहिए या फिर इफेक्टिव एक्सरसाइज के पैटर्न्स यूज करने चाहिए, जिससे उसका जो रिजल्ट है या फिर जो उसका गोल के पास पहुंचने का प्रोसेस है वो मैक्सिमाइज हो सके, जल्दी से जल्दी पहुंच सके, इफेक्टिवली वर्कआउट को यस कर सके कंटिन्यू यस। रेगुलर बेसिस पे। या ठीक है। ओके सर। जी सर। आर एन गोल सेटिंग थ्योरी। Goal setting theory grew out of work done पहले जो by हमने पढ़ा है उसका नाम क्या था। सेटिंग गोल। हमने सेटिंग गोल। revisit अभी तक हमने गोल सेट करना goal. करा है। अब हम गोल सेटिंग थ्योरी पढ़ रहे हैं आगे।
Goal setting theory grew out of work done by psychologists. They were especially interested in the relationship between goal setting and achievement in work settings, but their theory has been applied in many other contexts over the past 50 years. यहाँ तक समझ में आया? गोल सेटिंग थ्रू grew out the work done by psychologists, ये इसका नाम है. They were specially interested in relationship between goal setting and achievements. जो गोल सेटिंग है और अचीवमेंट इन वर्क सेटिंग के जो अचीवमेंट्स है और जो गोल सेटिंग किस तरह करनी है, ये बहुत ज्यादा इसमें इसके रिलेशनशिप जो इनके बीच में है, इसमें बहुत स्टडी करते थे, इंटरेस्टेड थे. बट देयर थ्योरी हैज बीन अप्लाइड इन मेनी अदर कंटेक्स्ट ओवर पास्ट 50 years. पर ये थ्योरी 50 साल में बहुत सारी जगह पर अप्लाई करी गई है, खाली वहां नहीं अप्लाई करी गई. तो अकॉर्डिंग टू गोल सेटिंग थ्योरी, Goals affect people's performance or inspire behavioral change through four primary mechanism. चार मैकेनिज्म जो है ये इसके थ्रू एक्सप्लेन करते हैं. डायरेक्टेड अटेंशन. Goals helps people direct their thoughts and behavior towards the activity necessary to move towards their goals. In a personal trainer context, this might means that a goal of becoming more physically active would influence daily movement breaks and other associated health behaviors, like allow time to weekly schedule to pursue reaction activities that involve physical exertion. ये मेरे को नहीं समझ में आया. रिक्रिएशन एक्टिविटी मुझे डायरेक्टेड भी नहीं आया अटेंशन. सर. गोल गोल हेल्प करता है पीपल को डायरेक्ट थ्रू देयर बिहेवियर टुवर्ड्स एक्टिविटीज नेसेसरी टू मूव टुवर्ड्स देयर गोल. गोल हेल्प करता है उनके जो थॉट्स हैं, उनके जो बिहेवियर हैं, जो ये सारी चीजें मिलके उसको आगे बढ़ाने में हेल्प करती है, जो उसको गोल अचीव करने में हेल्प करता है. इन अ पर्सनल ट्रेनर कंटेक्स्ट द माइट मीन दैट गोल ऑफ बिकमिंग मोर फिजिकली एक्टिव. जो एक पर्सनल ट्रेनर के कंटेक्स्ट से देखा जाए तो उनका जो गोल है becoming more physically active would be influence daily movement breaks and associated with health behavior. ये रोजमर्रा के जो छोटे मोटे ब्रेक्स हैं, जो मूवमेंट ब्रेक्स हैं, ये उनको भी मतलब कि प्रभाव डालता है. एंड उसके एसोसिएटेड हेल्थ बिहेवियर हैं जो आसपास के, जो आपके मूड के, मतलब जो आपकी आदतें हैं हेल्थ बिहेवियर रिलेटेड, मतलब बिहेवियर मतलब एक आदत ही हो गई, एक जो आपकी हेल्थ की आदतें हैं उनको उनके एसोसिएटेड उन पे भी असर डालता है. लाइक अलाउइंग टाइम इन अ वीकली शेड्यूल टू परस्यू रिक्रिएशन एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व फिजिकल एक्सर्शन. मतलब कि वीकली ऐसे शेड्यूल करना, परस्यू करना कि जो आपको रिक्रिएशन एक्टिविटी में इन्वॉल्व करे, जो आपको फिजिकली एक्सर्शन दे. डायरेक्टेड बेसिकली अटेंशन. हमारे को बेसिकली हमारे को इसमें ये कह रहा है सर कि ट्रेनर के साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि आप अगर फिजिकल एक्टिविटी डे टू डे एक्टिविटी और डेली लिविंग के अंदर कुछ मूवमेंट बढ़ा देते हो, तो एट द एंड ऑफ द डे जो आपको फिजिकल एक्सर्शन मिलता है वो बताया गया है रिक्रिएशनल एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स फिजिकल एक्सर्शन, जो आपके यस, हेल्थ बिहेवियर से रिलेटेड है. जो आपको वीकली ऐसा शेड्यूल बना रहे हो जिससे आपको, जो आप अपने वीकली के अंदर भी वीक के अंदर जो आपके शेड्यूल हैं उसके अंदर आप रिक्रिएशन कर रहे हो, अपनी बॉडी का परस्यू कर रहे हो, मतलब कि आप एडहेरेंस रखते हो अपने वर्कआउट की, जो आपको फिजिकली थकाता है. एक्सर्शन, जी सर. पर फिर भी मोबिलाइज सर एफर्ट. सर फिर भी मेरे को ये ना ठीक से और थोड़ा समराइज करके बता सकते हो इसका, ये ऐसा क्यों, ये पॉइंट का रीजन क्या है यहाँ पे, मतलब मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ एक्चुअली इसको. ठीक है. क्या हम क्या पढ़ रहे हैं, मतलब हमारा वो क्या है? थ्योरी हम तो थ्योरी था प्लानिंग सेटिंग हम क्या गोल्स पढ़ रहे हैं? गोल गोल सेटिंग. सेटिंग थ्योरी है. थ्योरी ऑफ गोल सेटिंग थ्योरी का गोल सेटिंग. डायरेक्टेड अटेंशन हम गोल साइकोलॉजिकल सेटिंग थ्योरी इम्पैक्ट. पढ़ रहे हैं कि गोल सेटिंग कैसे, इसको हम गोल सेटिंग को हम कैसे अपने आप को कर सकते हैं गोल सेटिंग के थ्रू. तो उसने जी. डायरेक्टेड अटेंशन के बारे में बताया कि आप अटेंशन कहाँ दीजिए. ओके. ठीक है. जी. अब मोबिलाइज एफर्ट्स, आप रेजिस्टेंस रहिए, आप अपने एफर्ट्स कर डालिए, स्ट्रेटेजी कैसे बनाएंगे, और आप ये सारा बना के एक सबसे बढ़िया बनाता है स्मार्ट गोल. स्मार्ट गोल क्या है? स्मार्ट गोल है
जैसे जिसमें आप नॉर्मली स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलिवेंट और टाइम बॉन्ड, ये ऐसा गोल बना सके। ये आपको गोल सेटिंग सिखा रहा है कि गोल बनाने कैसे हैं, किस तरह गोल बनाने हैं। समझ में आया? जी सर। तो डायरेक्टेड अटेंशन इज बेसिकली कि जैसे अगर हम एक गोल सेट करते हैं तो जो क्लाइंट्स हैं उनको एक डायरेक्शन मिलती है कि ये एक पर्टिकुलर गोल है और हमें इसको ही अचीव करना है, तो उसके लिए उसको मोटिवेशन आता है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट इसी चीज से सर रिलेटेड मैं है। ट्राई करूँ? एक काम करते हैं, हम 116 पेज एक बार कल पढ़ते हैं, मैं दोबारा ढंग से पढ़ाता जी हूँ, ठीक है? पहले तुम लोग मुझे ये वाला मैं ढंग से एक बार फिर से